will start with new chapter, that is equilibrium. Now I'm taking so much question, and in every question I'll teach you properly with rules. So just go through it and give your 100%. This is a maximum weightage containing chapter, so your proper attention is required, right? See the first question. It's from AIPMT 2006. For the reaction methane plus 2 oxygen gives you an back carbon dioxide, which is in gaseous state, and H2O in liquid state. Delta H minus 170.8 kilojoule per mole. So आप मुझे बताइए, which of the following statement is not true? Not true means wrong. Wrong कौन सा है बताइए. तो पढ़ते हम लोग. First option, at equilibrium the concentration of CO2 and H2O are not equal. मतलब equilibrium जब भी हो गया है at that time CO2 का concentration suppose x molar होगा, तो H2O का because of coefficient, stoichiometric coefficient is doubled. So here the equilibrium concentration obviously H2O का double हो जाएगा. Hence both are not equal. So this is right statement. हमें wrong कौन सा वो देखना है. The equilibrium constant for the reaction is given by Kp. Kp का formula पता है ना? Product का stoichiometric coefficient raised to its stoichiometric coefficient upon reactant का concentration raised to its stoichiometric coefficient. तो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, तो 1 है, बराबर है. ना दिस इज लिक्विड, लिक्विड है तो नहीं लिखा, वो भी बराबर है. पता है ना आपको, सिर्फ केसी और केपी में गैसेस स्पीशीज ही लिखते हैं हम लोग, राइट? वही लिखा है. मीथेन हाँ, रेस्ट टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, बट ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेस्ट टू क्या आया है 2, बट इसने नहीं लिखा है. हेंस दिस सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. This is your wrong statement, second one. See the third. The addition of methane and oxygen at equilibrium will cause a shift to the right. मतलब मीथेन एंड ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम पे डाला आपने. इक्विलिब्रियम ये रिएक्टेंट को खत्म करने के लिए फॉरवर्ड में जाएगा. पता है ना, फॉरवर्ड में जाएगा तो रिएक्टेंट खत्म होगा, और बैकवर्ड तो रिएक्टेंट प्रोड्यूस करता है, राइट? तो हियर मीथेन और ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए, फिनिश अप करने के लिए we have to go in forward reaction. ठीक है? तो hence this is left, this is right. तो equilibrium has to do the forward reaction, मतलब left से right की ओर जा रहा है. That's what we did. It caused a shift to right. Right पे shift हुआ. Next, fourth statement, the reaction is exothermic. Yes, because of minus sign देख के पहचान गए reaction exothermic है. Every combustion reaction is exothermic. ठीक है? तो here this right wrong statement हमें मिल गया. Hope it is easy, right? Easy रहते हैं, कुछ hard नहीं है. Proper attention दो. AIPMT 2015 का question. The value of an equilibrium constant for a particular reaction is this much. देख रहे हो, ह्यूज वैल्यू 10⁻12. Then at equilibrium the system will contain, first option mostly reactants, second option mostly products, third option similar amounts of reactants and products, fourth all are reactants. ठीक है? Now you just see carefully here. इतना बड़ा, सपोज केसी का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. बात समझा? तो ये आंसर कब बढ़ेगा? जब भी प्रोडक्ट बढ़ेगा, बराबर? तो आंसर बढ़ा हुआ इतना 10⁻12, सोच सकते हो ना आप कितना बड़ा आंसर है. तो इतना बड़ा हुआ आंसर है, इसका मतलब इतना तो पक्का है कि प्रोडक्ट ज्यादा होगा, तो आंसर ज्यादा मिला. रिएक्टेंट ज्यादा होता है तो ये केसी का वैल्यू कम मिलता था आपको, राइट?
क्लियर? केसी का वैल्यू इतना सारा देख के आई विल डेफिनेटली गो विद द प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है एंड यस मोस्टली द प्रोडक्ट्स फॉर्म हो चुके हैं. क्लियर? इट्स वेरी इजी अगेन इन 2015 AIPMT. See the AIPMT 2007 का question. It is also very nice question. To solve this, just I want to remind you the 4 rules. ये 4 rules properly सब लोग note down कर लो. बहुत important rule है. ठीक है? If reaction is reversed, then equilibrium constant will be inversed. ठीक है? Similarly, if reaction is multiply by n, reaction को n से multiply किया, then equilibrium constant will be raised by n. अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा ये रूल, पर पहले समझो, खाली लिख के तो लो एटलीस्ट. If reaction is divide by n, then equilibrium constant will be raised by 1 by n. Equilibrium constant 1 by n से raised होगा, n से multiply किया तो n से raised, divide किया तो 1 by n से raised. If both reactions added, then its equilibrium constant will be multiplied. मतलब दो रिएक्शन को ऐड किया तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई होंगे. चलो अभी ये 3 रिएक्शंस है, उससे ये रिएक्शन लेके आओ. ये 3 रिएक्शन से अपना वाला रिएक्शन लाना हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स में भी बहुत प्रैक्टिस किया है ऐसे इक्वेशंस की, राइट? सी नाउ अभी ये इस पे फोकस करो. क्या मैच हो रहा है सर? अमोनिया मैच हो रहा है. अमोनिया हमको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, बट है कहां पे? राइट हैंड साइड में. तो रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा. तो हियर क्या कर रहा हूं मैं? रिवर्सिंग द इक्वेशन नंबर 1, पहला वाला रिएक्शन, दूसरा, तीसरा. पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स कर दिया. रिवर्स करके लिखो 2 ammonia gives and back N2 plus 3H2. आपको पता है रिएक्शन अगर रिवर्स हो गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इनवर्स हो गया है. If the reaction is reversed, then equilibrium constant will be inversed. Inverse हो गया. सबसे पहला रूल अभी समझ में आया आपको, right? Now, see the second question, second reaction. This is the reaction when I compare with my main equation. Just 2NO is matched out, and 2NO right hand side पे रखना है, उधर ही है. There is no need to change. So just writing as it is, writing equation number 2 as it is. तो क्या लिखो जल्दी बोलो? N2 plus O2 gives and back 2NO and equilibrium constant as it is रखा मैंने, no change. रिएक्शन कोई चेंज नहीं किया ना. थर्ड देखो, सर वाटर मैच्ड, वाटर 3 कोएफिशिएंट है, इधर नहीं है, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय 3 कोएफिशिएंट. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 by 3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3H2. 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 by 2 O2 gives and back 3H2. याद करो, see the second rule. If the reaction is multiplied by n,
then equilibrium constant will be raised by n. तो equilibrium constant इसका K3 है, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो equilibrium constant will be raised to 3. So simple. अभी I am adding out all the reaction. ऐड कर रहा हूं मैं रिएक्शन को, तो क्या कैंसिल हो भाई? N2 गया, 3H2 भी गया. सर अभी कुछ भी नहीं जा रहा है. हाँ लिख दो अभी चुपचाप. 2NH3, 3/2 and 1, 3/2 and 1, 5/2. This is 2NO plus 3H2, 2NO plus 3H2. Now we want to find out the equilibrium constant K. I have added out the reaction. मेरे को जो चाहिए था वो रिएक्शन आ गया. चलो आ गया, मैच हो गया प्रॉपर. अभी ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो निकालना है, आप मुझे बोलो क्या रिएक्शन? If both reaction is added, that is equilibrium constant will be multiplied. ये सब रिएक्शन, तीनों दिन रिएक्शन को मैंने ऐड किया, तो तीनों दिन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will be multiplied. चलो मल्टीप्लाई कर दो. So 1 by K1 into K2 into K3 constant raised to 3. So this is my answer, right? ये आंसर कहाँ मैच हो रहा है? अपॉन K1 है, अपॉन K1 है, K2 ओ इधर मैच हो रहा है. बाकी सब तो डिवीजन में K1 है ही नहीं. So this how ये सिर्फ 4 रूल से फटाक से ये सॉल्व होता है. जस्ट नोट डाउन फास्ट. So student, let's have some more question. This is one of the superb question I have seen in the AIPMB 2008, most high level का. The dissociation equilibrium of gas AB2 can be represented by reaction दिया हमें. The degree of dissociation को x बोलना है हमें question में, which is very small as compared to 1. मतलब x very small value है. The expression relating the degree of dissociation x with equilibrium constant Kp and total pressure P is. ठीक है, तो अभी इसमें Kp दिखते ही देखो ये आपका रिएक्शन है. क्या है? Just let me write here. 2AB2 gas gives and back 2AB gas plus B2 gas. Kp ये रिएक्शन के लिए क्या होगा? खाली गैस देखें, सब गैस है, कोई प्रॉब्लम नहीं. पार्शियल प्रेशर ऑफ AB, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 2 लिखा मैंने. पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 अपॉन partial pressure of AB2 raised to 2. इतना लिखने के बाद applying the Dalton's law, partial pressure Dalton's law क्या है? देखो याद करो, मैं करवाता हूं. देखिए partial pressure of AB is nothing but mole fraction of AB in some amount, mole fraction of AB into total pressure. Square कर दिया. Similarly this mole fraction of B2 total pressure, mole fraction of AB2 into total pressure. Now the square is there, square कर दिया. Now mole fraction का तो फॉर्मूला पता है ना, सॉल्यूशन क्या अभी जस्ट what number of moles of AB upon total number of moles, total pressure का square. This is number of moles of B2 upon total number of moles into partial total pressure upon this is mole fraction of AB2. So number of moles of AB2
अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर। इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, तो अभी नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने के लिए इधर आ जाते हैं अपन। लेट्स से कोएफिशिएंट 2 है, इसके लिए मैं 2 लूंगा तो ज्यादा अच्छा है। 2 मोल्स थे हियर, दिस इज कंटिन्यूसली 2x जितना कम होते गया, दिस इज कोएफिशिएंट 2 है, इसके लिए 2x जितना प्रोड्यूस हुआ, एंड दिस इज 1 कोएफिशिएंट है, इसके लिए x प्रोड्यूस हुआ। स्टार्टिंग का इधर जो भी लाए थे अपन इनिशियल मोल्स 2 लिखा है तो 2 लेने का मोल्स में से 2x जितने खत्म हो गए तो बचा 2 में से 2x जितने खत्म हो गए तो 2 माइनस 2x जितने रिमेनिंग मोल्स ऑफ AB2। AB के प्रोड्यूस 2x, B2 के प्रोड्यूस 2x, hence the total number of moles at equilibrium 2 minus 2x plus this is 2x plus this is x. So I'm just cancelling out. 2 plus x is the total number of moles. Simple. सब moles मिल गए आपको. This I am substituting here. That's it. Kp here. See. Total number of moles of AB. AB के moles. AB के मोल्स 2x, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 प्लस x इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर। हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2 इज x, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 2 प्लस x, this is your total pressure. Now here upon में what I am writing here, number of moles of AB2 is there over 2 minus 2x upon total number of moles 2 plus x into ये total pressure and ये उसका square। ठीक है? Now let me tell you that, see तो देखिए अच्छे से Kp ये 2x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x का स्क्वायर टोटल प्रेशर का स्क्वायर इंटू x अपॉन 2 प्लस x इंटू टोटल प्रेशर। This is 2 minus 2x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x का स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर। तो फटाफट जो कैंसिल होता है कैंसिल करता है फटाफट, ये दोनों कैंसिल, प्रेशर प्रेशर कैंसिल, जो बचा है लिख दो बड़ा पार्ट मास्ता लवली केपे, ये ठीक है 2x का स्क्वायर, लेट मी राइट 4x स्क्वायर, फिर क्या बचा इंटू x, 2 नीचे जाएगा इंटू pt, तो ये नीचे आ गया 2 माइनस 2x का स्क्वायर 2 प्लस x। pt को इधर ले लो, टोटल प्रेशर को P लिखना है, टोटल प्रेशर को P लिखना है, और सब ऑप्शन Kp बाई P के हिसाब से तो मैं Kp बाई P में P इधर लेके आ गया, दैट्स व्हाई 4x क्यूब, 2 कॉमन ले लूं, 1 माइनस x द होल स्क्वायर, this is your 2 plus x, Kp by P, there is clearly written the degree of dissociation x and is small as compared to 1, x की वैल्यू बहुत कम है, तो x की वैल्यू बहुत कम वैल्यू
2 में ऐड करेंगे तो 2 ही ऑलमोस्ट रहेगा आंसर, राइट? सो लेट मी 2 प्लस एक्स को 2 लिख रहा हूं मैं. दिस 1 माइनस एक्स इज नेग्लिजिबल, तो ये 1 माइनस एक्स 1 ही रहेगा. दिस 1 इंटू 2 2 का स्क्वायर इज 4x क्यूब. ये 4 गया, ये 2 उधर चले जाएगा, तो 2kp बाई p, ये x क्यूब है, क्यूब रूट लिया मैंने, तो रेज टू 1/3 क्यूब रूट, राइट? क्लियर है आंसर? सो सिंपल. Hence I'll go with this first option, 2kp by p raised to 1/3. मस्त था ना हाई लेवल का, एकदम फर्स्ट क्लास. कुछ नहीं था, क्या हाई लेवल सर, ये kp का फॉर्मूला सिर्फ डेल्टन्स लॉ रखा बस. डेल्टन्स लॉ रख के जो नंबर ऑफ मोल्स है उधर से नंबर ऑफ मोल्स AB2K B2K एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सबका टोटल नंबर ऑफ मोल्स रख दिया. सो सिंपल. क्लियर था? बाकी तो मैथ ही था ना पूरा, 2 मिनट का काम था, हो गया. अभी इस इधर सबको प्रॉब्लम आ रहा था, ऑलवेज आता था जो कोएफिशिएंट है वो 2 ही लेने का. दिस इज 2 कोएफिशिएंट के हिसाब से 2x जितना कम हुआ, 2 कोएफिशिएंट के हिसाब से 2x जितना डेवलप हुआ, 1 कोएफिशिएंट के हिसाब से 1x जितना डेवलप हुआ. सो सिंपल, देयर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? नाउ सी वन, वो AIPFD 2008 में ही मस्त एक क्वेश्चन पूछा है. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 8. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढो, ये रिएक्शन का. तो अभी आगे क्वेश्चन में 4 रूल करवा दिए थे आपको. अब देखो, HI इसमें इस तरफ है, HI उसमें उस तरफ है, तो रिवर्स तो करना पड़ेगा. रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा. तो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आंसर इनवर्स हो गया, 8 का 1/8. देखो, इनवर्स करके HI इधर आ गया, बट अपन को 2HI चाहिए, तो इनवर्स करने के मतलब रिवर्स करने के बाद अपन को मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेज्ड बाय 2. जो मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेज्ड बाय n. इधर आपने क्या किया, रिवर्स करके मल्टीप्लाई बाय 2 किया, हेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेज्ड बाय n. तो हियर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेज्ड बाय 2, हियर मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हेंस आई वुड लाइक टू गो विद द आंसर 1/64. वाव! इस तरह से एकदम सिंपली 4 रूल अगर आता है तो 2 मिनट में कर सकते हैं. जस्ट नोट इट आउट. Hello student, more question I'm taking here, just concentrate. See, the values AIPFD 2008, the values of Kp1 and Kp2 for the 2 reactions, 2 reactions दिए हैं वो लोग ने. Kp1 और Kp2 का रेशियो 9:1 है. and if degree of dissociation x, ये x and A be equal, then total pressure at equilibrium in first and second are in ratio of. मतलब दोनों रिएक्शन में टोटल प्रेशर का रेशियो पूछा है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन दिया है वो लिख देते हैं. हमें दिया है Kp1 Kp2 equals to 9:1. Kp दिया है तो Kp का एक ही फॉर्मूला लगा देते हैं. क्या ऊपर फर्स्ट रिएक्शन, नीचे रिएक्शन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ y रेज़ टू 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ z रेज़ टू 1 अपॉन, बराबर ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ x रेज़ टू 1.
और क्या कर सकते हैं, राइट? नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। क्लियर? ये बीच का रेशियो क्लियर है एकदम। पार्शियल प्रेशर का एक ही फॉर्मूला, अभी एक बार लेना एक ही तरीका है, डेल्टन्स लॉ। डेल्टन्स लॉ लगाओ, चलो। ये बड़ा सा बीच वाला ऊपर और नीचे अलग अलग है भाई, ऊपर नीचे को मिक्स मत करना, वैसे ऊपर भेजने का ऐसा नहीं करना, बिकॉज दिस अलग रिएक्शन, ये अलग रिएक्शन है, दैट्स व्हाई ये एक्स। तो हियर डेल्टन्स लॉ क्या होगा सर? डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ y into total pressure raised to 1. Here mole fraction of z into total pressure raised to 1. Mole fraction of x into total pressure raised to 1. Here mole fraction of b into total pressure का square raised to 2 है, that's why here the mole fraction of A into total pressure। आराम से, तुम सिंपल, काफी इजी है, समझो इसको। सो 9:1 रेशियो जो है इज टू मोल फ्रैक्शन के लिए यू नो दैट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर रेज़ टू 1 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Z, number of moles of Z upon total number of moles into total pressure upon number of moles of X upon total number of moles into total pressure। फिर ये ब्लैक वाला रेशियो, मतलब ये बेसिकली ये ब्लैक वाला ऊपर 9 नीचे 1 है, ठीक है? नीचे भी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इट्स वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर, एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। इधर कोई प्रॉब्लम? काफी इजी है। चलो अभी टेंशन मत लो। हियर ये हाँ नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें, तो क्या कोएफिशिएंट 1 है, तो टेकिंग 1 कितना कंज्यूम हुआ, तो x जितना कंज्यूम हुआ, 1 है इसके लिए, 1x जितना कंज्यूम हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ तो x जितना, कितना प्रोड्यूस हुआ तो x जितना। तो z के कितने मोल्स है x, y के कितने मोल्स है x, और x के कैपिटल X के रिमेनिंग मोल्स आर 1 माइनस स्मॉल x। सिंपल, द टोटल करो सबका 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल मोल इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। हियर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिखने का, माइनस x मोल्स प्रोड्यूसेस, 2 कोएफिशिएंट है तो 2x प्रोड्यूस हुआ। तो हियर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस एक्स प्लस 2x, 1 माइनस एक्स प्लस 2x विल बी व्हाट, 1 प्लस एक्स। सबके मोल्स मिलकर रख दो, भी बड़ा फट एकदम लगता आंसर आ गया। तो हियर अच्छे से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y इज x, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस x इंटू ये टोटल प्रेशर। जस्ट फटाक से सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। nz नंबर ऑफ मोल्स ऑफ zx upon total number of moles 1 plus x। Systematically this is number of moles of x is 1 minus x upon total number of moles 1 plus x into total pressure। कोई प्रॉब्लम? कल सब्स्टिट्यूट करने का फटाक से, इधर ये नंबर रख देते हैं, बाद में एक साथ कैंसिल करते हैं। number of moles of B 2x upon total number of moles 1 plus x only, this is total pressure का square। Finally here number of moles of B
number of moles of A is 1 minus x. This is total number of moles 1 plus x. ठीक है, and this is your total pressure. ये कैंसिल कर दूं, टोटल प्रेशर इधर कैंसिल कर दूं, बरोबर ना, और कुछ कैंसिल नहीं होता है. तो सर हियर जो बचा है ऊपर एक्स स्क्वायर बचा, नीचे ये 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, टोटल प्रेशर इन फर्स्ट रिएक्शन. ठीक है, इधर क्या कैंसिल करूं सर, ये 1 प्लस एक्स कैंसिल हो रहा है, बट यू नो दैट इधर स्क्वायर है, तो दिस इज 1 प्लस एक्स. चलो लिख ही देते हैं ना, टेंशन क्यों. 4x स्क्वायर टोटल प्रेशर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. हाँ, ये ब्रैकेट सॉल्व किया. दिस बेसिकली 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स टोटल प्रेशर कैंसिल करो सर, ये टोटल प्रेशर एक बचेगा ना, 1 प्लस एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा. तो लेट मी राइट इट हियर, ऊपर वाला एज इट इज लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स टोटल प्रेशर इन फर्स्ट रिएक्शन. इधर क्या बचा है बेटा, बोलो जल्दी. 4x स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर इन सेकेंड रिएक्शन, ये 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, सो अगेन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स. तो अब देखो दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. लेट मी कैंसिल दिस. नाउ ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हेंस कैन आई राइट हियर 9:1 equals to, this is total pressure in first reaction upon 4 into total pressure in second reaction, right? 4 उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो I got here, yes, that is 36/1 the total pressure in first reaction upon total pressure in second reaction. ये पे कुछ नहीं था क्वेश्चन में, देख लो भाई, ये रेशियो दिया था, तो दिमाग क्या काम किया, केपी का फॉर्मूला रखो बस, और क्या है ही इसमें, केपी का फॉर्मूला रखा, तो लास्ट सम के जैसे ही पार्शियल प्रेशर को डाल्टन्स लॉ से रिप्लेस किया, नंबर ऑफ मोल्स आगे अपने जैसे इक्वेशन किया था वैसे नंबर ऑफ मोल्स लगा दिए, सिंपल. करते गए वी कम अप विद योर आंसर. सो देखो किया होगा तो एग्जाम में बहुत फास्ट कर पाओगे, अभी मस्त 2 मंथ है, फटाफट खाली प्रैक्टिस करना है बस. प्रैक्टिस किया तो 110% अच्छे मार्क्स आपको, राइट. सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2008 क्या पूछा भाई, तो द रिएक्शन दिया है और बोला है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इन द रिएक्शन इज, ये रिएक्शन दिया है, इज डिक्रीज अप टू 1/4 टाइम्स then equilibrium concentration of Fe3 plus will be. तो सिंपल है, एकदम सिंपल. देखो ये रिएक्शन में सॉल्यूशन, ये रिएक्शन में आप K लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, ये Fe plus 3 raised to 1 OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3 अपॉन, ये सॉलिड है इसके लिए नहीं आएगा, दैट्स व्हाई ये निकल जाएगा. क्वेश्चन में Fe3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने बोला है, तो ये अपॉन में डाल देता हूं मैं. आइडियली इक्वेशन नंबर 1 हियर
Same equation, I'm just rewriting it. But now they are saying that OH minus is reduced up to 1.4 times. मतलब उसकी वैल्यू 1/4 टाइम्स कर दी गई है. तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दे हैव क्या कर दिया है, जो पुराना था उसको डिवाइड बाय 4 कर दिया है कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज रेज़ टू 3. सो सिंपल. अभी just solving mathematically Fe plus 3 and this is OH concentration raised to 3 upon 4 का cube 64. ठीक है. So this is 64 into K OH minus का cube equals to Fe plus 3 का concentration. So can you see that ये old Fe का concentration था, this is old Fe का concentration is 64 times increased, 64 times बढ़ गया है. So this is your select. I've selected the answer. तो इस तरह से काफी easily question solve हुए हैं, कोई problem नहीं है. Properly practice करो, note down करो, question वापिस खुद से solve कर लो, तो आराम से आप एग्जाम में कर पाओगे. नोट डाउन दिस फास्ट. Let's start and have more questions. So, see the mains 2010 का एक मस्त क्वेश्चन है. Which of the following Kc and Kp not equal? We focus करो not पे. We know that Kp Kc का एक ही फॉर्मूला है. Kp equals to Kc Rp raised to delta Mg. तो हम लोग को ये दोनों इक्वल करने के लिए रेज टू 0 लाना है, क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. ये निकल जाएगा, Kp इक्वल्स टू Kc हो जाएगा. तो चेंज इन गैसियस मोल 0 लाने के लिए सीयर दो गैसियस के मोल्स प्रोडक्ट में, दो गैसियस के मोल्स रिएक्टेंट में, 2 - 2 चेंज इज 0. सिमिलरली हियर 2 गैसियस मोल्स प्रोडक्ट में, 2 गैसियस मोल्स रिएक्टेंट में, 2 - 2 gaseous change moles is 0. Again 2 - 2 change in gaseous moles is again 0. So still in all three conditions we are getting Kp equals to Kc. But see here, 2 moles of gas, 1 mole of gas only. This is solid. So basically 2 - 1, the gaseous change will come 1. So in that case Kp will not be equal to Kc, right? So here Kp and Kc will not equal. So simple. Now take one question. AIMS 2010 का है. 2 moles of gas of A2 are mixed with 2 moles of B2 gas in a flask of a volume 1 liter. If at equilibrium 0.5 moles of A2 is obtained, then find out the Kp for the reaction. ये reaction है, ये options है. तो एक सिंपल सी बात है समझना. क्या बोल रहे हैं लोग? A2 कितना लाना है? 2 मोल्स लाना है इन 1 लीटर ऑफ कंटेनर. तो इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ये कम होते जाएगा. वी डोंट नो कितना कम होगा, तो ऐसे लिख के छोड़ दिया मैंने इतना. सिमिलरली B2 2 मोल्स ऑफ B2 भी कितना है? 2 मोल्स है इन 1 लीटर ऑफ कंटेनर. कम होते जाएगा, रिएक्टेंट इसके लिए माइनस करके छोड़ दिया, इट विल गेट माइनस करके बचा हुआ B2. सिमिलरली AB कुछ नहीं बोला है. सपोज 1 कोएफिशिएंट X is consumed, 1 coefficient X is consumed, and this 2 coefficient 2X is produced. सिंपल सी बात. अभी क्या बोला है?
इफ एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोल्स ऑफ A2 ऑब्टेन्ड, इक्विलिब्रियम पे 0.5 मोल्स, A2 कितना मिला है, ये कितना मिला है 0.5 मोल्स, तो इक्वेशन बन जाएगा 2 - x इक्वल्स टू 0.5। 2 में से x जितना गया तो 0.5 मिला ऐसे, तो यार x विल बी, ये पॉइंट इधर इधर करके बाद x विल बी 0.5, x विल बी व्हाट, 2 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 1.5, तो 2 में से 1.5 माइनस करेंगे देन यू विल बी गेटिंग 0.5 आंसर लाइक दैट। 2 में से दिस x की वैल्यू 1.5 माइनस करेंगे तो इधर b2 कितना बचा होगा, सेम 0.5। ऑब्वियसली दोनों का स्टोइकियोमेट्री सेम है और दोनों सेम लाए थे अगर, तो कंज्यूम इक्वल अमाउंट में हुआ है x, ऑब्वियसली दोनों बचेंगे भी सेम, राइट। सिमिलरली दिस इज 2 into 1.5, x की वैल्यू कितना वो डेवलप हुआ है, दैट इज 3 मोल्स, 2 into 1.5, सबकी वैल्यू मिल गई, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन 0.5, बना हुआ कॉन्सेंट्रेशन 3, सब वैल्यू मिल गई, तो लगा दो K के फॉर्मूला में, दिस इज AB का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2, दिस इज A2 का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1, B2 का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1, सो दिस इज 3 का स्क्वायर करके लिख रहा हूं मैं 9 अपॉन 0.5 into 0.5, A2 एंड दिस B2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 1/2, 0.5 1/2, 1/2 के जो 2 है ऊपर आ जाएंगे, 9 into 2 into 2 दैट इज 36। सिंपल, हाँ कुछ डिफिकल्ट इसमें नॉट एट ऑल, सिर्फ अंदर वैल्यू करके सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ आंसर निकालना है, राइट। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2011 का एक मस्त क्वेश्चन लिया है, फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स मी द 2NO gas. The equilibrium constant is K1 for this reaction. For equilibrium constant is K2 for a reaction is this, मतलब ये दूसरा रिएक्शन दिया आपको। Now what is the value of K? मतलब अभी वो अपने 4 रूल याद करने थे, 4 रूल एक बार बोल दूं फटाफट। रिएक्शन रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स मल्टीप्लाई बाय n किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू n। इफ रिएक्शन को डिवाइड बाय n किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू 1 बाय n, एंड रिएक्शन को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट मल्टीप्लाई। याद आया चारों? चलो अभी अप्लाई करो। सर रिएक्शन में NO2 लेफ्ट हैंड साइड पे, NO2 का नहीं है, सिर्फ इधर NO2। एक तो हमें क्या करना है, रिवर्स करना है रिएक्शन को, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है ये रिएक्शन का, तो ये रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट इन्वर्स्ड हो जाएगा, राइट। तो हमें 2NO2 नहीं चाहिए, हमें 1NO2 चाहिए, तो अगेन रिवर्स करने के बाद डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड करूंगा आ जाएगा ये, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, राइट। रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 किया तो हेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू 1/2। समझ में आ रही है बात? रिएक्शन को डिवाइड बाय n करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू थी रेज टू 1/n। सिंपल। भी और देखो क्वेश्चन, सर ये रिएक्शन फर्स्ट एंड इसको कंपेयर करते हैं अगर, तो N2 को वो साइड लेके जाना है, तो N2 को वो साइड लेके जाने का, तो 2NO को इधर लेके जाने का, यस। N2 गैस प्लस O2 गैस ये भी इन्वर्स हो जाएगा बिकॉज रिएक्शन को रिवर्स किया मैंने। नाउ रिवर्स करने के बाद मुझे अगेन दिस हाफ लाने के लिए, N2 के आगे हाफ लाने के लिए रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो हाफ आ जाएगा, इधर भी आ गया। तो इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय 2 किया मैंने, तो हेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
will be raised by 1/2. So overall addition करने पे NO gets cancelled out. So basically NO2 gives them back half of N2 plus half and half 1. आगे मेरा रिएक्शन, ये रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की तलाश थी मैंने, दो रिएक्शन को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 1/K2 raised to half and 1/K1 raised to half, which equals to 1/K1 K2 raised to half. So hence I would like to go for third option. Simple. Yippee! So let's go with AIMS 2011 के questions. Which of the following is not a characteristics of equilibrium? सिंपल सी बात है. फर्स्ट ऑप्शन रेट इज इक्वल इन बोथ डायरेक्शन. इक्विलिब्रियम पे दोनों रिएक्शन की स्पीड सेम हो गई है ना, एंड दिस इज राइट. मेजरेबल क्वांटिटीज आर द कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम. तो भाई जितना प्रोडक्ट बनना था उतना कांस्टेंट हो चुका है, जितना रिएक्टेंट बचना था वो कांस्टेंट हो चुका है, राइट. Similarly, equilibrium occurs in reversible condition. Equilibrium occurs in reversible condition मतलब जब रिवर्सिबल रिएक्शन है तभी इक्विलिब्रियम होगा, राइट. सिंपल. तो दिस इज ऑल्सो राइट. फोर्थ ऑप्शन, इक्विलिब्रियम occurs only in open vessel. तो वो रॉन्ग हो जाएगा. इक्विलिब्रियम के लिए हमें कंपल्सरी ना इवेपोरेशन कंडेंसेशन दोनों रिएक्शन करना है, तो क्लोज्ड होना जरूरी है बेसिकली. सो हेंस फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, क्लियर कट. सो हियर ऐसे सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं, तो प्लीज डू इट प्रॉपरली. सारे मेरे ये क्वेश्चंस वाले रिएक्शंस देख के जाना. वी गेट डेफिनेटली आइडिया फ्रॉम इट and you will bang with your answer definitely in your exam. So build your confidence now. Note down. So student, let's have more question. That is AIPMT 2009. Very sweet and simple question is asked. That is the dissociation constant for acetic acid and HCN is at 25 degrees Celsius are 1.5 into 10 to the minus 5 and 4.5 into 10 to the minus 10 respectively. The equilibrium constant for this equilibrium reaction would be. तो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली उस पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. चलो तो सर इसमें HCN प्रोडक्ट साइड है, ऊपर लिखेंगे रेज टू 1, CH3COO रेज टू 1, CN माइनस रेज टू 1, CH3COOH. बट ये सब का कॉन्सेंट्रेशन तो दिया नहीं है, तो जो दिया है हम लोग को, क्या दिया है? एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन का कांस्टेंट के दिया है, जो ऑब्वियसली ऐसे करके फाइंड आउट किया होगा वो लोग ने, बराबर ना. प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन ये वैल्यू हमें दे दी है, दैट इज 1.5 into 10 raised to minus 5. Similarly, HCN का डिसोसिएशन हमें दिया है, which would be like this. This is your बराबर, जो ठीक है. अभी
इसका वैल्यू आपको दिया है, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁻10। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे पास ये दो रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन में से मुझे ये लाना है। तो ये, हाँ सर, ये CH3COH राइट हैंड साइड पे ही है, डोंट डू एनीथिंग टू दिस। दिस इज फॉर एसिडिक एसिड, alright easy. This for HCN, right HCN. Now I want Cn minus on this left hand side, reversing. तो आपको पता है रिवर्स करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनवर्स्ड। तो इसको रिवर्स किया मैंने। नाउ द ये रिएक्शन एज इट इज लिखा CH3COH ड्यूसन बैक CH3C डबल माइनस एंड H प्लस, इसको रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा, H प्लस Cn माइनस ड्यूसन बैक HCN, H प्लस गया भाई, क्या हो जाएगा CH3COH प्लस Cn माइनस। ओहो, हम लोग को जो चाहिए था रिएक्शन उसका ही आ गया सर, वही रिएक्शन आ गया, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये दोनों का एडिशन, बराबर ना, जहां पे यू कैन यूटिलाइज एसिडिक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज इट इज। पता है, दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आगे के रूल के हिसाब से। अभी ये जो दूसरा रिएक्शन है उसको आपने रिवर्स किया तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इनवर्स of HCN, right? I would like to write here HCN का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो इनवर्स हो गया बिकॉज ऑफ रिएक्शन रिवर्स किया मैंने सिंपली। सो दिस आई एम डूइंग हियर, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज गिवन एज 1.5 into 10⁻⁻5 एंड ये 1 upon दैट इज 4.5 into 10⁻⁻10 ऊपर आ जाएगा, -10 + 10, this -5 10⁻⁵, and this is 15 3s are, तो 1/3 is 0.33, पॉइंट आगे करेंगे तो 3 into 10⁻⁴ हो जाएगा, राइट। सो आई वुड लाइक टू गो विथ 3 into 10⁻⁴। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, जो दो दिया था उसको मैंने लिख के मेरे रिएक्शन का, जो मेरा रिएक्शन है वो रिएक्शन लेके आया, दो रिएक्शन पे से मिल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। नाउ सी, एक वैसा एक बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है AIPMT 2010 में। The reaction to A plus B gives and back 3C plus D. Start with the concentration AB जो भी ये AB है उसका concentration 1 मोलार से चालू किया, ऐसा बोल रहे हैं। So when equilibrium is reached, the concentration of D is measured and found to be 0.25 molar. Then what will be the equilibrium constant for this reaction? So let me write equilibrium constant for this reaction is C का concentration, equilibrium concentration raised to 3, D का equilibrium concentration raised to 1, A का equilibrium concentration raised to 2 and B का equilibrium concentration raised to 1. What will be the equilibrium concentration value of all this? उसके लिए ये सब वैल्यूज का यूटिलाइज करते हैं। लेट रीराइट द रिएक्शन फर्स्ट, सब गैसियस है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बोल रहे हैं भाई शुरुआत भले 2 है बड़ा 1 मोल ही लावा, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ कंज्यूम होने वाला है तो मैंने माइनस लिख दिया, कुछ प्रोड्यूस होगा तो कंज्यूम होगा ना, इसमें से 1 में से 1 तो शुरुआत में लाया था। फिर ये बोल रहा है कि डी इक्विलिब्रियम पे 0.25 मोलार बना है। The concentration of D is measured and is found to be 0.25 molar. D 0.25 molar found हुआ इक्विलिब्रियम पे, तो 1:3 ये 3 गुना प्रोड्यूस हुआ होगा इक्विलिब्रियम पे। चलो इतना तो मिल गया। ये 1 प्रोड्यूस होता है तो ये 1 कंज्यूम होता है, 1 प्रोड्यूस होता है तो 1 कंज्यूम होता है। तो हियर क्या 0.25 प्रोड्यूस हुआ तो 0.25 ही कंज्यूम्ड हुआ, बराबर। सो
1 लाए थे, कंज्यूम कितना हुआ 0.25 बना ना 1:1, 0.25 बनने के लिए 0.25 भी कंज्यूम हुआ, तो ना द रिमेनिंग वैल्यू इज 0.75, बी 0.75 मोलार बचा होगा। सिमिलरली ये 1 बना तब तो 2 कंज्यूम हो गया, 2 कंज्यूम का तब 1 बना, 2 कंज्यूम हुआ तो 1 बना, तो 0.25 अगर डी बनना है तो इसको डबल कंज्यूम होना पड़ेगा। That's why A will be remaining 0.5 only on equilibrium. So simple. नहीं समझते तो लिखो, तो फिर ये 1 बनने के लिए 2 कंज्यूम होता है, तो 0.25 बनने के लिए कितना कंज्यूम हुआ, तो डन यू कैन डू इट। ठीक है, तो दिस इज 1 बनने के लिए 2 कंज्यूम हुआ, 0.25 बनने के लिए कितना कंज्यूम हुआ, 2 into 0.25 दैट इज 0.5 कंज्यूम हुआ, 0.5 कंज्यूम हुआ, 1 लाए थे, 0.5 कंज्यूम हुआ, 0.5 इज रिमेनिंग। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू C, तो सर 0.75 का क्यूब, D 0.25, दिस A 0.5 का स्क्वायर and B is 0.75. So simple. So 0.75 का क्यूब है, हाँ है, 0.25 भी है, the whole thing divide by, yes, divide by 0.5 का स्क्वायर and 0.75, yes, perfectly मैच हुआ। Okay, उसमें नहीं मैच हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, because ये 0.75 0.25 लिखा है, 0.5 का स्क्वायर है, 0.75 स्क्वायर लिखा है, so not matching to all. So here first में मैच हुआ है, तो that's why this is the simple way to do the calculation. Simple एकदम, बराबर नोट डाउन करो। इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली you will be feeling very confident about this chapter. Do it fast.